Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is a special class for all entrance exam of mathematics. Now in every lecture, we discuss the important question of CSI or NET, IIT JAM, GATE, NBHM and other exam of mathematics. Okay. Now today we discuss the question of real analysis, that is 6 question from real analysis, 2 question from complex analysis and 2 question from integral equation. Now the first question, which is related to compactness, means we have a phi set and we have to find which set is a compact. First we learn what is a compact. Means if we have a given some set, and how we decide the given set is compact or not. The definition of compact is कि a set is said to be compact if every cover of, or we say that every open cover of set admit its finite subcover. That is, now solution number 61. Suppose this is our some set J, means ये एक set है G and there is some open cover. Suppose this is open cover, which is arbitrary open cover. Okay, which cover G? That means G can be written as union of Gi, where I is going from 1 to infinity, where each Gi is a open. Where each Gi is open, and if G can be written as a union of each Gi, that is the Gi, the collection of open cover Gi cover a G. Means यहाँ पे G को कवर कर रहा है सारे ओपन कवर मिला के, बट कैसे? आर्बिट्ररी ओपन कवर है. Then there exists a finite subcover, that is G1, G2, solve up to Gn, such that this G can be written as I is going from 1 to n Gi. That means there exists a some finite subcover which again cover a G. मीन सिंपल में यह कहे कि अगर कोई एक सेट G है, उस G को अगर ओपन कवर करते हैं तो उसके पास कुछ ऐसे फाइनाइट ओपन सब कवर होंगे जो फिर से G को कवर करते हैं. ऐसे सेट को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट. But for solving a question of entrance exam, we don't use this formula or this definition. We always try to solve question by using some theorem, lemma और a results. तो ऐसे ही रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी सेट को ये बता सकते हैं. That means how to we decide whether a set is compact or not. That is simple definition. A set is said to be compact if and only if A is closed and bounded. This is if and only if result. Means किसी भी सेट को, every set is said to be compact if A is a closed and bounded. कोई भी सेट हो, उस सेट को ये कहेंगे कि वो कॉम्पैक्ट होगा कब? जब वो क्लोज और बाउंडेड है. और क्लोज और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है तो क्लोज बाउंडेड होगा. दैट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. तो यहां पे इस रिजल्ट का यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कॉम्पैक्ट है या नहीं. ठीक है. नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज A is a set of all order pair such that x square upon a square plus y square upon b square, means A is a all order pair in R square, means Euclidean space. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where A is not is equal to b. And we know that this is the equation of ellipse, means ये ellipse का equation है. और ellipse के equation को अगर हम draw करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन होगा.
जहां पे सपोज ये माइनस बी है और ये सपोज बी, ये माइनस ए और ये इस तरीके का हमारे पास एलिप्स बनेगा। और एलिप्स, अब ये एक क्लोज सेट है। क्लोज सेट क्यों? क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट के अगर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो एम्प्टी होगा, और एम्प्टी सेट हमेशा सेट के अंदर कंटेन करता है। तो लास्ट लेक्चर में देखा था कि अ सेट इज सेड टू बी क्लोज इफ एवरी लिमिट पॉइंट इज कंटेन इन दैट सेट। तो इसके सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन करते हैं, क्योंकि अगर इसका में इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट हैं, या फिर ये कह सकते हैं सेट क्लोज। तो ये सेट क्लोज है। अब यहां पे बाउंडेड, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट बाउंडेड है, मीन्स दिस सेट इज बोथ बाउंडेड प्लस क्लोज। दैट मीन्स हमारा सेट क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ये जो सेट है इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है दिस सेट इज कॉम्पैक्ट सिंस इट इज बाउंडेड एंड क्लोज। नाउ इन अ सेकंड एग्जांपल, मीन्स एलिप्स और उसके मतलब वो सारी, ये इक्वेशन है एलिप्स के इंटीरियर और बाउंड्री का। यहां पे देखो लेस देन बता रहा है, मीन्स ये इंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स ये पार्ट, प्लस इज इक्वल टू मीन्स बाउंड्री को भी इंक्लूड है। और किसी भी सेट के अंदर बाउंड्री इंक्लूड है तो उस सेट को हम क्लोज कहते हैं। क्लियरली ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, मीन्स ये सेट हमारा कॉम्पैक्ट हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर राइट। मतलब ए और बी आर, ए एंड बी आर अ कॉम्पैक्ट बिकॉज बोथ द सेट आर क्लोज एंड अ बाउंडेड। नाउ सेट सी, all the order pair such that ax plus by plus 5. Clearly this is the equation of linear equation, and since constant part is non-zero, this is non-homogeneous linear equation. Therefore it is a line which is not passing to origin. This is some line and this is the equation of ax plus y plus 5 is equal to 0. That means अगर a और b, x और y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो मतलब ये इक्वेशन जो होगा कुछ यहां से इस तरीके से पास होगा। ठीक है, तो मतलब ये एक लाइन है एंड लाइन इज अ क्लोज, क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके क्लोज के सेट के अंदर कंटेन करेंगे, क्लोज सेट है। बट दिस इज नॉट अ बाउंडेड, मीन्स लाइन तो बाउंडेड तो नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। मीन्स इसका अपर लिमिट नहीं निकाल सकते, इसका लोअर लिमिट नहीं निकाल सकते, या फिर इसका सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट मीन दिस सेट इज नॉट बाउंडेड। अगर किसी सेट का सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है मीन्स वो सेट हमारा बाउंडेड नहीं होगा। दैट मीन दिस सेट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट। तो वन थिंग इज रिमेंबर, अ लाइन इज नेवर बी, अरे लाइन इज ऑलवेज क्लोज बट नॉट अ बाउंडेड if we taking on whole real number means whole r. Now next, d ax plus by square is equal to 1. It can be written as ax plus by square is equal to 1. That means y square can be written as 1 minus ax upon b. Therefore y is equal to root of 1 upon ax minus b. So this equation is again the graph look like this. This is under root, for example this is the graph of like root of x, and we know that the graph of root x is not a bounded. So it is close but not a bounded. तो therefore ये जो सेट है बाउंडेड तो है, अरे क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है। तो अगेन हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अगेन ये वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होगा। अगर इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी ग्राफ क्या नहीं होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा। मीन्स हमारे पास ए और बी तो कॉम्पैक्ट है क्योंकि ए एंड बी आर क्लोज एंड बाउंडेड, बट ऑप्शन नंबर सी डी ई वो बाउंडेड है, अरे क्लोज है बट बाउंडेड नहीं है। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट होगा कि ए बी आर कॉम्पैक्ट बट सी डी ई आर नॉट कॉम्पैक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिलेटेड टू सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी एग्जाम।
CSIR NEET or GATE or NBHM or IIT SEM. There are many questions are asked from a sequence. Here we have to find the limit, that is limit n tends to infinity 1 minus 1 upon n square raised to n. If we look carefully, this is the 1 minus 1 upon n square can be written as 1 minus n plus 1 by n. So L is equal to limit n tends to infinity 1 upon or 1 minus 1 upon n square raised to n. This is our question. Now limit n tends to infinity, it can be written as 1 minus n 1 plus 1 by n. By using formula a square minus b square can be written as a minus b into a plus b. Now here 1 can be written as 1 square minus 1. Now limit n tends to infinity 1 minus 1 upon into limit n tends to infinity 1 plus 1 by n. This is n. Now we know that the formula or the result limit n tends to infinity 1 plus 1 by n raised to is nothing but the e, the value of e. The value of e is 1 plus 1 by n raised to n. So here since he had a minus, so therefore this is e raised to minus 1 and this is the value of e. So therefore e minus plus 1 is equal to e raised to 0, that is 1. This is the value of limit 1 minus 1 upon n square is equal to n raised to n. So therefore our option number 1 is right. मीन्स यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर को स्प्लिट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके, फिर प्रोडक्ट में उसको ब्रेक कर देंगे और हमें फॉर्मूला पता है कि e की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन n whole raised to n. This is coming from compound interest, which is very important topic in commerce. Now the next is using the fact summation 1 upon n square is equal to pi square by 6. Means यहाँ हमारे पास एक सीरीज की वैल्यू गिवन है and this is the very important formula. The proof of this is very important, and if you want the solution of this, then how to prove the summation of 1 upon n square is equal to pi square by 6, we take a separate lecture, because here we use so many property. Using differential equation we can prove this, or a complex analysis, and by using Fourier transformation. So we will prove in some lecture. Now but here we have a given कि summation of 1 upon n square is equal to pi square by 6. Now we have to prove, or we have to find the value of summation 1 upon 2n plus 1 square. Now first we have to expansion of, first we expand the summation 1 upon n square and 1 upon 2n plus square. Now start. So solution number 63. Given that कि summation of 1 upon n square पाई स्क्वायर बाय 6, मीन्स हमारे पास एक वैल्यू गिवन है कि समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6, एंड हमें प्रूव करना है वी हैव टू फाइंड 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है. अब अगर इसे हम एक्सपांड करें तो मीन्स हमारे पास जो पाई स्क्वायर बाय 6 की वैल्यू है
वो कुछ और नहीं बल्कि 1/1 स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/3 स्क्वायर, सॉल्व अप टू ऐसे चलेगा। और इसे सपोज हम एल की वैल्यू दे देते हैं। ऐसे ठीक इसी तरीके से अगर हम समेशन 1/2n+1 को अगर इसे एक्सपांड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1/3 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 1/5 स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पूरा ये लिख देते हैं। मीन्स 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहां पे वो पार्ट लिखेंगे, हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट विच पार्ट। मीन्स यहां पे तो सिर्फ 1/3 स्क्वायर था, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर। वी एडेड एक्स्ट्रा 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, लाइक। मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस बिकॉज 0 होना चाहिए क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। अब जितना ऐड कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। मीन्स 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर। मीन्स ये सारे नंबर हमने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। तो इस वैल्यू को ये बनाने के लिए हमने इसमें ये टर्म्स ऐड किए थे। अगर ये टर्म्स हम ऐड कर रहे तो उस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि बैलेंस रहे। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी π²/6, ये गिवन है। यहां से माइनस को निकाल देंगे तो ये -1। और अगर इस टर्म को देखें तो ये हमारे पास समेशन ऑफ 1/2n स्क्वायर है। अगर देखें तो 2 का स्क्वायर मतलब यहां पे 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 1 to इंफिनिटी। तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू थी π²/6 -1 माइनस समेशन 1 to इंफिनिटी 1/2n का स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। नाउ टेकिंग 4 कॉमन, π²/6 -1, taking 2 common we get -1/4 summation 1/n square 1 to infinity। बट इसकी वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ दिस इज π²/6। अब ये हो गया हमारा आंसर, π²/6 -1 माइनस π²/24। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नीचे 24 और 4 -1 3 π² और 3 से 24 को कैंसिल करेंगे यानी कि π²/8 -1। दिस इज अवर वैल्यू। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है, यहां से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा कि π²8 -1। दिस इज अवर वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64 again. Now this question is related to compact, supremum, infimum, bounded set. तो फिर से यहां पे हमें यूज करना है वही प्रॉपर्टी का कि किसी सेट को कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, जब वो सेट क्लोज एंड बाउंडेड होगा। बट क्वेश्चन को ध्यान देते, ये क्वेश्चन आईआईटी जैम का है कि एस अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, मींस एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, मींस रियल नंबर के अंदर हमें एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, यानी कि जीरो सेट नहीं होना चाहिए। एस इज अ फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल। फाइनाइट यूनियन, ये जो की है काफी इंपॉर्टेंट है कि एस हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि रियल नंबर के अंदर जितने भी बाउंडेड इंटरवल्स होंगे और सारे आपस में कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, और उनका फाइनाइट यूनियन लेना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मीन्स हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, वी हैव अ 4 स्टेटमेंट एंड वी हैव टू डिसाइड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ एस इज नॉट कॉम्पैक्ट then supremum S doesn't belongs to S and infimum S doesn't belongs to S।
ये कह रहा है कि अगर सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो उसके अंदर सेट के मतलब जो सेट है उसके अंदर उसकी सुप्रीमम भी बिलोंग नहीं करेगी, इन्फीमम बिलोंग नहीं करेगी। ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर सुप्रीमम एस इन्फीमम एस बिलोंग भी करे तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सेट कॉम्पैक्ट होगा। नाउ द थर्ड वन इज कि सुप्रीमम और इन्फीमम अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रही है तो सेट को कॉम्पैक्ट कहेंगे। और फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि अगर एस कॉम्पैक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम बिलोंग करेंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ऑफ 64। पहले तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि मान लो आपके पास एक सेट गिवन है कॉम्पैक्ट, मीन्स हमारे पास एक कोई सेट गिवन है कॉम्पैक्ट, तो हम ये कहते हैं कि ये सेट क्या होना चाहिए, क्लोज और बाउंडेड होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई भी सेट अगर क्लोज नहीं है तो भी हम कहेंगे वो कॉम्पैक्ट नहीं है, अगर बाउंडेड नहीं है तो भी कहेंगे कॉम्पैक्ट नहीं। अगर कोई सेट क्लोज और बाउंडेड है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेट क्लोज प्लस बाउंडेड है मीन्स वो सेट क्या होगा, कॉम्पैक्ट। ये इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन। अब ये हमारे पास रिजल्ट है। अब क्लोज से एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर सेट क्लोज है तो सुप्रीमम एस भी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, इन्फीमम एस भी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। अ सेट इज सेट टू बी, अरे अगर कोई सेट क्लोज है तो उस सेट का सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू दोनों सेट के अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, तो यहां पे सुप्रीमम वैल्यू क्या है इसकी बी और इन्फीमम वैल्यू क्या है ए, बट ये सेट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर इसी सेट को हम इस तरीके से लिखें तो ये सेट के अंदर इन्फीमम है क्योंकि ये लोअर बाउंडेड है, अरे मतलब क्लोज है, बट यहां से राइट साइड में ये क्लोज नहीं है, मींस इसका इन्फीमम एग्जिस्ट हो रहा है बट सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो बट ए और बी यहां पे दोनों इसके सुप्रीमम एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो सुप्रीमम इन्फीमम का ये है कि अगर किसी सेट का सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट होगा तो वो सेट के अंदर होगा। तो बाउंडेड का क्या है, ये एग्जिस्टेंस बताता है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फीमम ऑफ एस एग्जिस्ट होगा। क्लोज एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, वो ये कहता है कि अगर सेट बाउंडेड है तो इन्फीमम और सुप्रीमम सेट की एग्जिस्ट होगी। और क्लोज सेट ये कहता है कि अगर ये एग्जिस्ट हो गया, अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तब तो ये कुछ नहीं, लेकिन अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो वो सेट के अंदर होगा, ये क्लोज कहता है। मींस बाउंडेड सेट सुप्रीमम के बारे में ये बताता है कि सुप्रीमम मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड, मैक्सिमम होता है वो सेट के अंदर होता है, मिनिमम भी सेट के अंदर होना चाहिए, बट सुप्रीमम हो सकता है वो सेट के बाहर हो, मतलब बाउंड्री पे भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो सेट के अंदर इंक्लूड ना हो। तो ये डिफरेंस होता है सुप्रीमम और इन्फीमम का। ऐसे इन्फीमम सबसे लोवेस्ट वैल्यू, बट अगर वो सेट क्लोज है तब तो वो सेट के अंदर है, बट अगर वो क्लोज नहीं होगा तो हो सकता है वो मतलब सेट के अंदर नहीं होगा। तो बाउंडेड सेट एग्जिस्टेंस बताता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट होगी, और क्लोज ये बताता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर। तो इन सारे रिजल्ट का यूज करके अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर सेट कॉम्पैक्ट नहीं है तो सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर सेट कॉम्पैक्ट नहीं है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेट ले लूं, जैसे कि मैं 1 2 ले लूं, ठीक है, और एक साइड से इसे क्लोज कर दूं। यूनियन ले लूं यहां पे 3 और 4 को, बट डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए लेना है। द डेफिनेशन इज सेट इज अ फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट यूनियन है बाउंडेड डिसजॉइंट इंटरवल का। तो ये दोनों बाउंडेड है इसकी, क्योंकि ये दो वैल्यू के बीच में आ रही है, सारी वैल्यू इसकी 1 और 2 के बीच में आ रही है, एंड द वैल्यू ऑफ 3 4 इज बिटवीन 3 to 4। दोनों डिसजॉइंट है, कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, दोनों का फाइनाइट यूनियन है क्योंकि दो ही इंटरवल ले रहे हैं। बट यहां पे सेट का इन्फीमम 1 और ये सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट का सुप्रीमम
4 ये भी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, बट यहां पे सेट कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि सेट क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब यहां से भी क्लोज होना चाहिए, यहां से भी क्लोज होना चाहिए, बट ये सेट क्लोज नहीं है, बट सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम बिलोंग कर रहा है। एक रिजल्ट तो ये हो गया। मीन्स सेट के अंदर अगर मतलब सेट अगर कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि सेट के अंदर 1 और 4 बिलोंग करेंगे। ये एक रिजल्ट हो गया। मतलब पहला ऑप्शन तो यहां से रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये कह रहा था कि सेट अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो सुप्रीमम और इन्फीमम एस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं, हमारा सुप्रीमम भी एग्जिस्ट हो रहा है, इन्फीमम भी एग्जिस्ट हो रहा है, बट सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि अगर सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस सेट के अंदर है तो एस नीड नॉट बी अ कॉम्पैक्ट। तो इसे बाद में करते हैं। अब ध्यान से, इवन एफ एस इज कॉम्पैक्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सुप्रीमम एस एंड इन्फीमम एस बिलोंग्स टू एस। सेकंड क्या कह रहा है कि तो सी क्या कह रहा है कि अगर सुप्रीमम एस इन्फीमम एस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो एस कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे इन्फीमम भी बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम भी बिलोंग कर रहा है, बट हमारे पास सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब सेम ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी भी डिलीट हो गया। इवन अगर एस कॉम्पैक्ट है इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सुप्रीमम एस एंड इन्फीमम एस बिलोंग्स टू एस। अब यहां पे ध्यान दो, डी रिजल्ट है कि अगर एस कॉम्पैक्ट है इट मींस इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, कि अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो वो सेट क्लोज भी होगा, सेट बाउंडेड भी होगा, बट ये कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम और इन्फीमम बिलोंग करेगा सेट के अंदर। अब मैंने रिजल्ट क्या कहा था कि अगर सेट क्लोज है, ये डायग्राम को देखो, अगर सेट क्लोज है तो सुप्रीमम और इन्फीमम एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब सेट क्लोज होगा, इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम एस सेट के अंदर बिलोंग करेगी। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इफ S is a compact, it is not necessary that supremum or infimum does not belongs to S। बट ये तो ट्रू नहीं हो सकता है। रिजल्ट है कि अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज होगा, और एवरी क्लोज सेट के अंदर उसके सुप्रीमम इन्फीमम सेट के अंदर कंसिस्ट करते। मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए ऑप्शन भी रॉन्ग, सी ऑप्शन भी रॉन्ग, डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो मतलब बी ऑप्शन तो राइट होगा कि अगर सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस बिलोंग कर रहा है नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। ये एग्जांपल है कि सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस सेट के अंदर बिलोंग कर रही बट सेट कॉम्पैक्ट नहीं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि IIT JAM 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, एक सीरीज गिवन है और ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कब। तो इसका मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है, तो इसको आप कर देना कि सॉल्यूशन नंबर 65 हमारे पास एक सीरीज के बारे में पूछा है कि सीरीज इस तरीके से है कि x प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 प्लस सॉल्व अप टू एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सॉल्व अप टू। ये हमारे पास सीरीज है। अगर इस सीरीज को हम अच्छे से लिखें तो समीशन वी कैन रिटर्न दिस एज एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 प्लस सॉल्व अप टू 1/n where n is going from 1 to infinity। ये हमारे पास सीरीज है, तो इसे हम कह सकते an। तो बाय यूजिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 हम ये निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये रेशो टेस्ट है। दिस इज रेशो टेस्ट। नाउ वी नो दैट कि सपोज द वैल्यू ऑफ दिस इज L। इफ L इज लेस देन 1 the series is divergent। if L is greater than 1 the series is convergent, and if L is equal to 1 test is fail। तो
तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इसी को अगर हम रिवर्स में कर देंगे तो ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि अगर लिमिट n टेंस टू ए एन प्लस वन की वैल्यू अगर लिमिट l आ रही है, अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अगर l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और l इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसी सेम अप्रोच को फॉलो करता है लॉगरिथमिक रूल। लॉगरिथमिक रूल ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये हमारे पास लॉगरिथमिक रूल है। अगर सपोज इसकी वैल्यू l है तो l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो कन्वर्जेंट। तो इस रिजल्ट का यूज करके पहले ए एन अपॉन ए एन प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे और फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो भी इसका लिमिट होगा उसको ग्रेटर देन 1 लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसको n से मल्टीप्लाई करके और फिर l ग्रेटर देन 1 लेके स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका आंसर जो होगा वो l इज लेस देन, अरे x की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन ई। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है जब भी x की वैल्यू स्मॉल लेस देन 1 अपॉन ई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 66, ये भी IIT जैम का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि वी नो दैट कि किसी भी सीक्वेंस को अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम ये कहते हैं कि उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो कन्वर्जेंट होते हैं। अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। ये कह रहा है कि 3 सीक्वेंस है AN BN CN रियल नंबर के, जिसमें BN A to N यानी कि इवन सीक्वेंस है, CN इज इक्वल टू 2n प्लस 1 यानी कि इवन ऑड सीक्वेंस गिवन है। तो ये कह रहा है कि AN इज कन्वर्जेंट होगा, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि BN इज कन्वर्जेंट होगा बट CN इट नॉट बी कन्वर्जेंट? नहीं, अगर AN कन्वर्जेंट है तो BN और CN दोनों कन्वर्जेंट होंगे, बट ये कह रहा है कि नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये रॉन्ग होगा। बी में ये कह रहा है कि ये इंप्लाई करता है कि CN भी कन्वर्जेंट होगा बट BN नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस हो, चाहे वो इवन सीक्वेंस हो या ऑड सीक्वेंस हो, वो हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। सी ये कह रहा है कि इंप्लाई बोथ BN एंड CN आर कन्वर्जेंट, तो हाँ अगर उसका कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इवन ऑड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होंगे और सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होंगे। फिर लास्ट में कह रहा है कि इफ बोथ BN एंड CN आर कन्वर्जेंट देन A इज अ कन्वर्जेंट। मतलब अगर इवन सीक्वेंस और ऑड सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये कह रहा है कि A एंड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो ऐसा नहीं होगा, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस, अरे समेशन, अरे सीक्वेंस ले लेंगे -1/n। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके इवन टर्म कहाँ कन्वर्जेंट होते हैं 1 पे, ऑड टर्म कहाँ कन्वर्जेंट होता है माइनस पे। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल बाय यूजिंग वी कैन एलिमिनेट डी, कि अगर इवन सीक्वेंस ऑड सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। हाँ, बट अगर इवन और ऑड सीक्वेंस अगर सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होंगे तो ये कह सकते हैं, बट यहाँ पे लिमिट के बारे में नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि BN एंड CN दैट मीन्स ऑड एंड इवन टर्म्स आर कन्वर्जेंट देन इट डजंट इंप्लाई द सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट इफ even and odd sequence are convergent to a same limit, at that time we say that the original sequence is convergent. In other terms, we can say that a sequence is said to be convergent if all the subsequence which cover every term of sequence and convergent to same limit. मतलब अगर वो हर एक टर्म को कवर करे और जो भी सीक्वेंस है अगर वो सेम लिमिट को कन्वर्जेंट हो रहा है तो एट दैट टाइम वी से दैट कि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। मींस इसमें A1 A2 बहुत सारे सीक्वेंस है और सारे सीक्वेंस मिलके सारे सेट के सीक्वेंस के पॉइंट को कवर कर रहे हैं और सेम लिमिट पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ वो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। अगर लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं तो अगर सारे सब सीक्वेंस मतलब प्रॉपर सब सीक्वेंस, क्योंकि अगर सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहेंगे तो अब वहां पे लिमिट अगर वर्ड नहीं भी यूज कर रहा है तो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सारे सब सीक्वेंस में इटसेल्फ खुद भी सीक्वेंस आता है। तो वहां पे अगर प्रॉपर सीक्वेंस, ये वर्ड याद रखना, अगर क्वेश्चन में तो ये वर्ड क्लियर है कि सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे तो फिर सारे सब सीक्वेंस में खुद इटसेल्फ अपना सीक्वेंस भी आ रहा है।
तो याद रखना है प्रॉपर सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो रहे, जैसे यहाँ पे इवन और ऑड के बारे में बात करें तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये काफी सिंपल था, ये भी आईटी जैम का क्वेश्चन है 2005। तो ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग, सी राइट और डी ऑप्शन रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 विच इज रिलेटेड टू, अच्छा ये क्वेश्चन डी टू डी ओलोमॉर्फिक है विथ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू हाफ एंड एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू डी। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक इनइक्वालिटी पे रिलेटेड है, जिसे स्क्वायर्स पिक्स लेमा कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्स पिक्स लेमा का यूज करके इसे हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो उसका थ्योरम ये है, तो स्क्वायर्स पिक लेमा का रिजल्ट ये है कि मान लो एक डोमेन गिवन है डी, ठीक है। ये सपोज एक डी है, डोमेन डी, और इस डोमेन के अंदर अगर एफ एनालिटिक है और सपोज ये जो डोमेन है ये मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन क्या होना चाहिए, यूनिट सर्कल होना चाहिए। और इस डोमेन के अंदर f क्या होना चाहिए, एनालिटिक। अब एनालिटिक वर्ड यूज करें या फिर होलोमॉर्फिक, बोथ आर सेम। f इज एनालिटिक और होलोमॉर्फिक, बोथ द टर्म, बोथ द वर्ड आर सेम। मीन्स अगर एक यूनिट सर्कल है, दैट मीन्स ये जो डोमेन होगा ये इस तरीके से होगा डी, कि अगर डी एक यूनिट सर्कल है और फंक्शन एनालिटिक है उस डोमेन पे, होलोमॉर्फिक है, एंड एफ ऑफ जेड इज लेस देन 1। अगर हम उसका मॉड निकालेंगे तो एफ ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो यहां पे कुछ इनइक्वालिटीज हैं कि एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अच्छा इसको याद कैसे रखना है, तो जो डेरिवेटिव है ऐसे याद रखना है कि 1 अपॉन वाई 1 माइनस एक्स, ऐसे याद रखो, ठीक है। और यहां पे इसका वाई स्क्वायर लिख दो, यहां पे एक्स स्क्वायर लिख दो। अब ऐसे समझो यहां पे कि 1 माइनस, जैसे हम अगर एक्स वाई प्लेन पे बात करते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स को वाई लिखते हैं, तो ऐसे सेम यहाँ पे एफ ऑफ जेड का मॉड लगा के स्क्वायर लिख दो और एक्स के प्लेस पे जेड से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर। तो एफ डैश जेड की जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो लेस देन होता है 1 माइनस एफ ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। सेकेंड रिजल्ट ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी, इसका मैं अगर कोई भी पॉइंट उठाऊं जेड और उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालूं, तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन होगा। तो यहां पे हम tan अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला है उसके ऐसा यूज कर सकते हैं, जैसे वहां पे होता है ना कि a प्लस बी 1a इंटू बी, तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो a के प्लेस पे लिखना है एफ ऑफ 0 प्लस मॉड जेड अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू जेड। तो a प्लस बी 1 अपॉन a इंटू बी, तो जहां पे a के प्लेस पे पुट करना है एफ ऑफ 0 और b के प्लेस पे पुट करना है मॉड जेड। तो ये रिलेशन है कि एफ ऑफ 0 प्लस मॉड जेड अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू मॉड जेड। तो इन दोनों रिजल्ट का यूज करके बाय यूजिंग दिस टू रिजल्ट वी फाइंड द इनइक्वालिटी। ओके, f is a function, complex function going from d to d, be a holomorphic means analytic, with f of 0 is equal to half and f of half is equal to 0, where d is a unit circle. Which of the following is correct? तो आप इसमें चेक कर सकते हो, सिर्फ यहां इनइक्वालिटी पे वैल्यू पुट करना है, हमें ये चेक करना है कि डेरिवेटिव, तो यहां पे 0 पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे हाफ की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करके। इसमें और एक ऑप्शन है आई थिंक, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, मैं आपको पीडीएफ में वो अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन चेक कर देना, ठीक है। पीडीएफ में ये शायद इक्वेशन सेम हो गई, यहाँ पे और एक ऑप्शन है एंड करके, ठीक है। तो डी तो नहीं होगा, डी यहाँ पे डायरेक्ट रॉन्ग होगा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नहीं हो सकता। तो बाकी
ए, बी और सी को आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, प्रूव दैट कि द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos 3 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन नंबर 68, तो हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पे करना क्या है, तो पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर सपोज हम z के प्लेस पे e रेस टू आई थीटा लेते हैं और थीटा की वैल्यू सपोज 0 और पाई के बीच में है, दैट मीन्स ये एक यूनिट सर्कल है। ठीक है। सेकेंड रिजल्ट आपको ये याद रखना है, सपोज 1 अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस A1 A2 सॉल्व अप टू जेड माइनस AN। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है इसे हम सिंगुलैरिटी, इसे ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, सिंपल पोल। ठीक है। तो ये हमारे पास पोल है। तो सपोज ये A1 से लेके AN तक अगर ये पोल है, मान लो हमारे पास कोई डोमेन दिया है D, इस डोमेन के अंदर सपोज A1 A2 इस तरीके के पोल है, A1 A2 A3, सपोज ये पोल है हमारे पास। ठीक है। सपोज बहुत सारे ऐसे पोल है AN, और हम चाहते हैं कि इस डोमेन पे हम फाइंड करें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना होता है। रेसिड्यू थ्योरम ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz, अगर f ऑफ z के पास A1 A2 सॉल्व अप टू AN पोल है, इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल पोल, मीन्स जितने भी पोल होंगे वेयर AI। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। ठीक है। इस फंक्शन का हर एक पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है, मतलब 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ f एट AI, मतलब जितने भी सिंगुलैरिटी है या फिर जितने भी हमारे पास पोल हैं उन हर एक पोल पे रेसिड्यू निकाल के सम करना है और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है। ये इंटीग्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो इन तीनों रिजल्ट का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। अब इसे करना कैसे, मैं आपको हिंट बता देता हूं, ये भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 0 to 2 पाई cos 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा, और हमें पता है कि e रेस टू आई थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब अगर हमें रियल पार्ट निकालना है e रेस टू आई थीटा का, तो हम सिंपल लिख सकते हैं cos थीटा। तो अगर हमें सपोज इसकी वैल्यू निकालना है ये इंटीग्रेशन का, देन लेट z इज इक्वल टू e रेस टू आई थीटा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई e रेस टू आई 3 थीटा 5 माइनस 4 cos थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 3 थीटा साइन थीटा, द रियल पार्ट ऑफ e रेस टू 3 थीटा इज नथिंग बट द cos 3 थीटा। तो हियर वी कैन रिटर्न दिस इंटीग्रेशन एज रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई e रेस टू आई 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम इसे, अब यहाँ पे हमें डी थीटा की वैल्यू निकालना है, तो सपोज हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इसे डेरिवेट करेंगे, तो डी जेड अपॉन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आई थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो देयरफॉर डी थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं
अरे सॉरी यहाँ पे आई, तो डी थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन आई ई रेस टू आई थीटा, दैट इज डी जेड अपॉन आई, और ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू क्या है जेड, मीन्स यहाँ पे, तो ये हम डी थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं, मीन्स हमारा जो थीटा है वो कन्वर्ट हो गया जेड के टर्म्स में, तो देयरफॉर 0 to 2 पाई cos 3 theta upon 5 minus 4 cos theta can be written as real part of 0 to 2 पाई, बट यहाँ पे 0 to 2 पाई नहीं, हम इसे ये सिंपल लिख सकते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है। अब यहाँ पे यूनिट सर्कल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जेड ई रेस टू आई थीटा है, तो ये एक यूनिट सर्कल है और एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 2 पाई, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ई रेस टू आई 3 थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेस टू थीटा हमारे पास जेड है और यहाँ पे 3 पावर ले लेंगे तो ई रेस टू 3 थीटा, मतलब यहाँ पे हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं जेड क्यू अपॉन 5 माइनस 4। अब कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि कॉस थीटा इज नथिंग बट द ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस प्लस ई रेस टू माइनस ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड, ई रेस टू माइनस आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड इनवर्स अपॉन 2। तो ये कुछ और नहीं बल्कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो ये z प्लस 1 अपॉन जेड, दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन जो हमारा होगा उसे हम लिख सकते हैं सिंपल द रियल पार्ट ऑफ मॉड z इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये z क्यूब था, यहाँ पे 5 माइनस 4 और यहाँ पे इसके प्लेस पे cos थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सिंपल z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, यहाँ हो गया, और इसके बाद यहाँ पे डी जेड अपॉन आई जेड, डी थीटा के प्लेस पे यहां से वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब सिंपल इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास कुछ इस टर्म्स में पोल मिलेंगे और हर एक पोल का रेसिड्यू निकालना है, तो जो भी पोल मिलेंगे वो सिंपल एक पोल मिलेगा, और जो रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं, तो इस रिजल्ट का आप यूज करके निकाल सकते हैं कि अगर सपोज सिंपल पोल का अगर हमें रेसिड्यू निकालना है एट पॉइंट ए पे, तो हम सिंपल क्या करते हैं लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ ऑफ z, ये हमारे पास सिंपल पोल का रेसिड्यू का फॉर्मूला है कि अगर सपोज किस f का a पॉइंट पे सिंपल पोल है तो लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ ऑफ z, तो वहां से हम रूट निकाल देंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके वहां पे वैल्यू निकाल देंगे। तो जो भी हमारे पास पोल मिलेगी इस तरीके से हमें पोल का सम लेना है और उस तरीके से वैल्यू निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, अब ये z यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से z z कैंसल, मीन्स z यहां से पहले ये z मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हमारे पास 5z माइनस, अगर हम इसे करेंगे तो 4z स्क्वायर माइनस 4, इस तरीके से आ रहा है। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मतलब यहां पे 2 रूट आएंगी नीचे डिनोमिनेटर, मतलब दोनों एक सिंपल पोल बनेंगे, और जो सिंपल पोल बनेगा यहां पे दोनों सिंपल पोल का हम क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके रेसिड्यू निकालेंगे, और फिर रेसिड्यू निकाल के बाय यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, तो रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम सम कर देंगे दोनों वैल्यू पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आई से, तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 49, तो जो 49 क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंटीग्रल इक्वेशन से, तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे हमारे लेबनिट्स फॉर्मूला से। तो पहले समझते हैं लेबनिट्स रूल क्या है। लेबनिट्स
रूल। लीबनिट्ज रूल ये कहता है कि अगर सपोज हमें डेरिवेटिव लेना है a ऑफ x b ऑफ x, यहां पे सपोज x और यहां पे कोई t dt, सपोज इस फंक्शन को मैं डेरिवेट करना, तो हम कैसे करेंगे? पहले यहां पे a ऑफ x इंटीग्रेशन द लिमिट फ्रॉम a ऑफ x टू b ऑफ x, डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे, मतलब जो भी फंक्शन होगा वहां के x के टर्म को डेरिवेट करेंगे dt, फिर यहां पे प्लस। अब क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है अपर लिमिट का और t के प्लेस पे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी, यानी b ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स। अब लोअर लिमिट लेना है और यहां पे t के प्लेस पे लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी। तो ये हमारे पास होता है लेबनिट्ज फॉर्मूला। इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं, कि अगर सपोज 0 to x f ऑफ t इंटू डी टी होगा, अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो विथ इसका आंसर होता है f ऑफ x। तो ये लेबनिट्ज का ये स्पेशल केस है। तो फॉर ये दो फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल इक्वेशन हियर y ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 टू x इंटू y ऑफ dt हैज द सॉल्यूशन, मीन्स y की वैल्यू निकालनी। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या उसको अच्छे से लिख लेते हैं। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ 69 इज लेट y ऑफ x इज इक्वल टू, सिंपल इसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं, 1x इंटू y ऑफ t dt। तो ये हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 टू x y ऑफ t इंटू dt। तो सपोज इसे इक्वेशन नंबर 1 देते थे। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे? ये तो हो जाएगा y डैश x की डेरिवेटिव हो जाएगी 1। अब यहां पे सिंपल हमारा कौन सा रूल लगेगा? लेबनिट्ज रूल। तो लेबनिट्ज रूल क्या कहता है कि पहले इंटीग्रेशन को ऐसे ही रखो, यहां पे डेरिवेटिव कर दो, यानी कि d ऑफ dx सिर्फ x को यहां पे y ऑफ t इंटू डी टी ऐसे ही रहेगा, प्लस अब क्या करना है? डेरिवेटिव करना x का, तो मतलब अपर लिमिट के डेरिवेटिव तो बचेगी, बट लोअर लिमिट वाला टर्म 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0। तो यहां पे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और जहां पे भी t दिख रहा है उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? अपर लिमिट, यानी y ऑफ x, यानी कि सिंपल हमारे पास यहां बचेगा x इंटू वाई ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस x, और यहां पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपल y ऑफ t इंटू डी टी प्लस x इंटू वाई ऑफ x, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसमें? तो ये ब्रैकेट में पूरा, तो ये जब ओपन होगा तो ये माइनस, बट 1 माइनस 1 टू x y ऑफ t dt, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि अगर यहां सपोज x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x y ऑफ t dt। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो ये x यहां आ जाएगा। मतलब ये सिंपल यहां पे जो ये 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 टू x y ऑफ t dt है, इसके प्लेस पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स अपॉन एक्स। तो देयरफॉर y डैश x इज इक्वल टू y ऑफ x अपॉन x माइनस x इंटू वाई ऑफ x। अब अगर यहां से y ऑफ x को कॉमन ले लेंगे और ये साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y डैश x अपॉन वाई ऑफ x इज इक्वल टू, अगर y ऑफ x कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन x ये होगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सिंपल y ऑफ x का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है, मीन्स log ऑफ y ऑफ x, ये हमारे पास log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, दोनों साइड e रेस टू अप्लाई कर देंगे। तो e अप्लाई करेंगे तो ये y ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू log x का आंसर क्या होगा? तो e रेस टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y ऑफ x इज इक्वल टू
ई रेस टू लॉग एक्स के प्लेस पे तो सिंपल एक्स लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और कांस्टेंट के प्लेस पे सिंपल सी आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कि देयरफॉर y ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर 2। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए अगर सपोज यहां पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1, और यहां पे भी अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट करेंगे तो यहां पे 1 और यहां 1 पुट करेंगे, ये पार्ट तो पूरा 0 और ये 1, यानी कि हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिंस अगर हम इसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये y0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम सपोज 1 पुट करेंगे तो 1 इसके प्लेस पे 1 और ये ई रेस टू माइनस 1/2, तो देयरफॉर यहां से c की वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू हाफ। तो देयरफॉर हमारे पास जो y ऑफ x होगा वो सिंपल क्या होगा x ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू, अब अगर यहाँ पे c के प्लेस पे हम ई रेस टू हाफ लिखेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ई रेस टू 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट है। तो ये x इंटू ई रेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास यहां भी निकालना है कि फाई इज द सॉल्यूशन कि 0 टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सेम हमें लेबनिट्स का फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्यूशन आने के बाद x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे √2। तो सेम टेक्निक यही होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सेम ऐसे ही टेक्निक है, इसे सेम टेक्निक का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जिनका ये पहला लेक्चर है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का डिटेल जो भी वीडियो रहेंगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।